Yes, Shanu, start. Yeah, good evening, everyone, and we welcome you all for today's session. And we welcome you all for today's session with Live Life Queen Size Group. This group was started by Mr. Ashu Chopra with the purpose to help each other, to uplift each other, and grow together. And these sessions that we have every Thursday and Saturday are part of that purpose. And each time we have a different speaker from our group, and we get to know more about each other. We get to learn so many new things. So we are thankful to you, Mr. Ashu Chopra, for letting this happen and bringing us all together on this platform. And today we have speaker Dr. Anjali Gupta. She is a relationship expert. And let us hear from her. And before that, Mr. Ashu Chopra, if you have to say something, please share. Yes, Manisha. Thank you, Shanuji. And all credit do goes to Ashuji for starting this group. And thank you everyone for joining. Dr. Anjali ji is an expert in this topic. So let's hear from her. Wishing her all the best. Anjali ji, please start your session. Ashuji, please say something. Yeah, thank you all of you for joining today evening, taking out time. हमारा group का purpose यही है that we promote all the women entrepreneurs and professionals in our group. So all of you are welcome. If you want to join the group, you can connect with us. This is a lovely group of all women from all over India. And regularly we having sessions on Thursday and Saturday. And today's session, we have got Dr. Anjali Gupta from Lucknow. And she's a very experienced doctor, as well as counselor, as well as a you can say relationship expert. And today she is going to take a very important topic that is very important part of her life. So Anjali ji, all the best to you. Please start your session. Thank you, Ashuji, Shanuji, and Manisha ji, that always you are giving me opportunity to come over in this platform, Live Life Queen Size. And right now, today, 6th of July and 6 p.m., again, I am going to come in this platform to share my experiences while dealing the cases of relationship. In my journey of 31 years of in the field of mental health, and my experiences may be the more than 400 to 500 क्योंकि मैंने रिलेशनशिप पे काम किया है. तो बेसिकली व्हाट इज अ रिलेशनशिप? जब हम धरती पे आते हैं तो रिलेशनशिप वहीं से स्टार्ट हो जाता है. दैट इज अ कनेक्शन. सो लाइक ए कनेक्शन बिटवीन टू और मे बी मोर. सो स्टार्टिंग विद द कनेक्शन फ्रॉम, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शन का, तो मदर के वूम से कनेक्शन स्टार्ट होता है. एंड दैट टाइम द चाइल्ड व्हेन कम्स इन दिस अर्थ, तो उसे सिक्योरिटी चाहिए होता है, कंपेनियन चाहिए होता है, एंड साथ ही साथ उसमें नर्चरिंग चाहिए होता है. तो नर्चरिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बॉन्ड और साथ ही साथ इमोशनल कनेक्टिविटी चाहिए होता है. एंड दैट जो एक डायनेमिक तैयार होता है, और वो डायनेमिक किस तरह से एक पर्सनालिटी फॉर्म करता है. और वो पर्सनालिटी जब फॉर्म होती है तो इंडिविजुअल पर्सन हैज, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनालिटी ट्रेट्स. और ये पता नहीं चलता है कि कैसे ये पर्सनालिटी हमारे साथ किस तरह से कहाँ मिलने वाली है, जुड़ने वाली है. और वो रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, मैरिज कपल रिलेशनशिप की, यहाँ पर हम आपके सामने कपल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ the people they are suffering with emotional traumas and traumatic experiences, anxiety, panic attacks, sadness, depression because of emotional disconnection with their partners. और वो किस तरह से उनको उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, और वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते करते वो डिवोर्स की तरफ या लिविंग सेपरेटली और लिविंग टुगेदर, ये दो एक फिनोमेना उनके अंदर डेवलप होता है. दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लिविंग टुगेदर और लिविंग सेपरेटली. और वो जो फिनोमेना डेवलप होता है, तो उस फिनोमेना के चलते चलते 50 to 60% डिवोर्स रेट इज फाउंड इन द फर्स्ट मैरिज. आज के इंडिया का जो हमारा रिसर्च डाटा कहता है, और ऑल ओवर इंडिया का जो है वो 7 to 8% और अराउंड 10% के आसपास जा रहा है, कि जो कि हमारा ऑल ओवर लाइक ओवरसीज लेवल पे ये इसका रेशो इस लेवल पे जा रहा है.
और साथ ही साथ अगर सेकंड मैरिज की बात करते हैं तो सेकंड मैरिज में इसका जो डिवोर्स रेट है और बढ़ जाता है, और वो 70% के आसपास, तो 50 to 60 से 70% के आसपास चला जाता है। इतना इनसिक्योरिटी है, और उस इनसिक्योरिटी के चलते जो हमारे स्कार्स हैं, जो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल से वो कैसे, हाउ दे कैन बी कोप विद दैट एंड हाउ दे कैन कम आउट ऑफ दैट, किस तरह से उनकी हम मदद कर सके। क्योंकि वो एक 3 प्रकार के फेजेस होते हैं, द 3 phases व्हेन दे गॉट मैरिड। एक फेज होता है जिसमें कि हम सभी ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जब शादी होती है तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपसे इतना, मतलब ऐसा लगता है कितना वो भूल गए। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी लगता होगा, ये नॉट ओनली यू एंड दिस इज लाइक अ लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि ऐसा लगता है कि शादी में जैसे हेवन में चले गए। सो लाइक ए हेवन लाइक फेज आता है, दैट इज जिसको कहते हैं हनीमून फेज। और ये जो हनीमून फेज है वाटर ना, बात कर लेंगे। जो फेज, और वो जो भी मैरिज अनम्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें ताकि हम अच्छे से सेशन सुन सके। थैंक यू। और फिर ये मैरिज का जो फर्स्ट फेज आता है, इसमें क्या होता है, हैप्पीनेस जो होता है, यू आर वेरी जॉवियल, यू आर लुकिंग अ वेरी पॉजिटिविटी इन योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देख रहे होते हैं, और जब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देख रहे होते हो तो आपको बुराइयां कुछ दिखती ही नहीं है। और अगर बुराइयां दिख भी रही हैं तो यू आर इन सोल, आप इतना लव कर रहे होते हो, इतना प्यार कर रहे होते हो, इतना सरेंडर हुए हुए होते हो, इतना आप की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने तरफ से आपने क्रिएट की हुई होती है कि आपको कुछ भी नहीं दिखता, ओनली दिखता है कि लाइक आई एम विद अ पार्टनर, और मेरी जिंदगी यही यही मेरी जिंदगी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उस समय ब्रेन का भी हमारा केमिस्ट्री है, जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें डोपामिन्स है, ऑक्सीटोसिन्स है, ये हमारे सीक्रेशन होते हैं जो हैप्पीनेस और जॉयफुलनेस देते हैं। और ये फेज आपने देखा होगा हम लोग की अपनी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में, हम लोगों के समय पे, जैसे मेरे समय पे 1 ईयर तो चलता ही चलता था। दैट वॉज अ टाइम की 1 ईयर से 2 ईयर्स लाइक अ माई, जैसे कि मेरी फ्रेंड्स की मैरिज हुई तो बिल्कुल भूल जाते थे कि हाँ कोई अंजलि भी है। और लेकिन अभी का जो आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल के सिनेरियो में ये जो आपका जो फर्स्ट जो फेज है, स्टेज है ऑफ द मैरिज, जिसको हनीमून स्टेज वीकनेसेस हैं वो आपको दिखाई देने लगती हैं, और पार्टनर को आप में दिखाई देने लगते हैं। तो उसमें आपको एडजस्टमेंट इश्यूज थोड़े थोड़े से आपको दिखने लगते हैं, और आपको लगता है कि ओके आई हैव टू फेस सम सिचुएशंस जो कि हो रहा है, दिक्कत हो रही है। और वो फेज जो है आपको आज के समय में हो सकता है कि विद इन अ 1 मंथ और विद इन अ 2 मंथ्स, विद इन अ 3 मंथ्स, ये आज के समय पे दिखने को मिल रहा है। और ऐसे ही फेज में जरूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, द पर्सन दे गेट वेरी लाइक अपसेट एंड दे आर नॉट एबल टू शेयर द थिंग्स टू देयर पार्टनर, टू देयर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, वो किसी को भी वो देना नहीं चाहते, वो प्रेशर नहीं देना चाहते, स्ट्रेस नहीं देना चाहते, अपनी फैमिली में बताना नहीं चाहते। वो अपनी मैरिज को बहुत अच्छा शो करना चाहते हैं कि मेरी मैरिज बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से वो मैरिज को बेहतर बनाने के लिए वो स्ट्रगल करते रहते हैं, इनर स्ट्रगलिंग चलती रहती है। और इनर स्ट्रगलिंग चलती है तो वैक्यूम आता है, वैक्यूम आता है, लोनलीनेस फील होता है, दे स्ट्रगल मैनी थिंग्स। तो ये हमारा सेकंड फेज ऑफ मैरिज है। थर्ड फेज ऑफ मैरिज आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो दे आर द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ इमोशनल लाइक इमोशनल अफेक्टिविटी, जो इमोशंस में पूरी तरीके से एक डिस्ट्रेस फील होने वाली सिचुएशन आती है। और उस सिचुएशन में अपार्ट और टुगेदर वाला सिचुएशन आ जाती है। और कोई कोई पेयर्स कहते हैं मैं तो इस शादी को चला ही नहीं सकता, मुझे चलानी ही नहीं शादी है। और कोई कहता है कि मुझे नहीं चलानी है, दोनों साइड से, फीमेल और मेल साइड से, दोनों साइड से। तो ऐसे कई सारे मेरे पास केसेस हैं जिसका कि मैं कुछ तो नहीं, बहुत सारे नहीं, एक ही केस को मैं लेकर आई हूँ और जो मैं
आज मैं शेयर करने वाली हूँ, और वो शेयर जो है आप सभी को मिलने वाली है, शेयर होने वाला है। तो अभी मैं चाहूंगी कि आप जो है इसका वो शेयर करें शानू जी, तो सो दैट आई कैन लाइक गो हेड विद द अदर। शानू जी, are you able to? Give me 1 minute, ma'am. I'm sharing. Sure, sure. You can please continue. In the meantime, I will share the screen. Yes, yes, of course. So there's a story which I am going to share, and one of my client, and she came to me 1 year back. मेरे पास last year she came, before last year maybe. और जिस समय शादी होने वाली थी उस समय भी she was with me, और she was confused कि मैं शादी थी. She is a 31 or 32 years old, and शादी के लिए उसके फादर का प्रपोजल था. फादर लेकर मैरिज के लिए लाइक ही प्रपोज दैट पार्टनर कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं. तो शी वाज कंफ्यूज वेदर शुड आई गो और नॉट गो. कंफ्यूज थी, बट देयर वर द मेनी अदर इश्यूज जो उसके प्रीवियस लाइफ में चल रहे थे. तो शी वांटेड टू कम आउट, और एक अच्छा समय था जहाँ पर उसको उस सिचुएशन से निकलना था. तो आई सेड कि यस, योर लाइक अ पार्टनर जिससे शादी होने वाली है, ही इज लाइक अ सुप्रीम कोर्ट, ही इज इन दिल्ली प्लेस्ड, एंड सुप्रीम कोर्ट में ही इज एडवोकेट, और ही इज अ वेरी नाइस गाय सीम्स टू बी. तो शादी हो गई, एंड और व्हेन शी गॉट मैरिड, और फिर वहाँ पर सिचुएशन क्या हुई कि शादी हुई, और बिफोर मैरिज दे मेट टुगेदर, मतलब मिले आपस में उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनके अपने टेम्परामेंट, उनका अपना पैशन, दोनों ने आपस में शेयर किया. एंड बोथ वर एग्रीड, ओके वी विल हैव लाइक अ लाइफ टुगेदर, एंड हम लाइफ को अच्छा बिताएंगे, और विद द कंसेंट ऑफ ऑल दिस, एंड बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड. एंड शी was फ्रॉम लखनऊ एंड शिफ्टेड टू दिल्ली. उसने अपना कैरियर, बहुत अच्छा चल रहा था, इट वाज अ वेरी गुड कैरियर, एंड शी इज अ वेरी एंटरप्रेन्योर गर्ल, और बहुत ही लाइक शी इज ओवर, लाइक शी इज एक्सट्रोवर्ट टाइप, वेरी लाइक अ जोवियल एंड वेरी लाइट, लाइक माइंडेड. तो इस तरह का था. लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो मदर इन लॉ इज नॉट देयर, ओनली फादर इन लॉ इज देयर, एंड देयर इज नो अदर सिबलिंग्स, ओनली ही इज द ओनली वन. और वहां पर जब पहुंच, शी गॉट मैरिड विद द हस्बैंड, और जब शादी हुई तो उसने सबसे पहले देखा कि हस्बैंड का जो नेचर था, इट वाज अ वेरी, कहते हैं ना, एज अ मूडी टाइप. whenever he wants to talk to you, then he will talk to you. तो उसकी कई सारे प्रॉब्लम्स आई कि he was like a less communicative, और moody in nature, and disconnection, और साथ में लाइक एक होता है कि एक मैकेनिकल लेवल पे एक केयरिंग है, बट लाइक इमोशनल लेवल पे नॉट अवेलेबल देयर. एंड so lot of like a problems was there. And वो इतना, और वो जो है कि और फोन पे बिजी रहना, फोन पे बात करना अपने अपने लेवल पे, एंड ही इज लाइक हैप्पी विद हिज ओन शेल ऑफ लाइक एरिया. लेकिन जब वाइफ के साथ आना, और वाइफ को थोड़ा सा, वाइफ को डिमांड करना, तो उसके सामने उसका प्रेशर दिखाना कि देखो मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत प्रेशराइज्ड हूँ, और मुझे इतना सारा काम करना है, ऑफिस का बहुत सारा बर्डन है. So always like giving this excuses, and like avoiding her. तो ये इतना जो अटैक, कहते हैं ना, अटैचमेंट फीलिंग्स जो होती हैं, दैट अटैचमेंट एंड डिस अटैचमेंट, जो ये कनेक्शन होता है, एंड ये जो क्रिएट करना शुरू किया उस गर्ल में,
and she became very like upset कि what to do, what not to do, क्योंकि after the age of 30 years हम शादी कर रहे हैं, so not going to get apart from each other, हम divorce करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम शादी को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं. तो this was like a mindset. ये एक माइंडसेट लेकर के शी इज स्टिल सर्वाइविंग. और फिर शादी के बाद तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हर कि भाई तुम्हारी शादी हो गई, बहुत अच्छा है, यू आर लाइक नाउ गो योर यू मूव योर लाइफ विद योर पार्टनर. और ऐसे करके जो शी वाज ओके, शी वाज फाइन 3 months. तो उसने शी डिड नॉट कॉन्टेक्ट मी, उसने कहा मैम आई एम फाइन, आई एम गुड. और फिर शी गॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो, तो शी इज नाउ प्रेग्नेंट. तो अभी क्या हो रहा है कि इवन दो मतलब शी इज एक्सपेक्टेड, तो कितना इमोशनल नीड चाहिए होता है, फिजिकल नीड्स चाहिए होते हैं, इमोशनल नीड्स चाहिए होते हैं, बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है, कंपेनियनशिप चाहिए होती है. सो ऑल आर लैकिंग विद हिम, बट द थिंग इज ओनली द प्रेजेंस इज दिस, physical availability is there. So like a blocking the intimacy, and from one side अगर ऐसा है तो सेकंड साइड कैसे क्या कर सकते हैं. तो शी केम टू मी और कि मैम मैं करूं तो क्या करूं. सो द सिचुएशन इज फाइट टू फ्लाइट, व्हाट टू डू, क्या करूं, अलग हो जाओ या साथ में रहो या लखनऊ में आकर अपने आप को सेट करूं, सेटल करूं, मेरा यहाँ तो बहुत अच्छा कैरियर था, मैं क्या अपने कैरियर में वापस आ जाऊं. सो लाइक दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड शी वाज स्ट्रगलिंग विद दैट. और फिर जब इस तरह की सिचुएशंस आए, सो लाइक many problems, you can go ahead another one. So here like what is your goal, what do you want, आप चाहते क्या हो, what do you want, आप क्या चाहते हो. तो मैम मैं चाहती क्यों, मैं तो चाहती हूँ कि वो बदल जाए, अदरवाइज ही इज नाइस गाय, बट उसका अपना पास्ट है, वो जो भी पास्ट है, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर शी स्टिल ही इज कनेक्टेड विद द पास्ट और रियली ही इज लाइक ही इज विद द वर्क, जो कि वो शेयर करने वाला नेचर नहीं है, इज नॉट एबल टू शेयर विद दिस. तो उतनी सारी चीजों को शी वॉज कैरिंग विद. और मैंने देखा कि उसके अंदर काफी चेंजेस आए. लाइक जब वह पहले आती थी तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड वो इतनी खुशनुमा दिखती थी और बहुत तैयार होके आती थी, रेडी होके आती थी, और उसका अपना मेकओवर बहुत अच्छा सा होता था. मैरिज के बाद जब देखा तो शी लॉस्ट हर वेट, मुझे लगता है कि 5 to 7 kg शी लॉस्ट वेट. और she was very anxious about the career, about the future, or she was sad, she was not able to think ki what to decide, what to do. So in that phase, like there's a conflict phase, is a very severe conflict phase within a period of December mein marriage hui, and now it is going to July, so around 7 months is going to over, and within a 7 months all phases she is carrying with, कि उसका हनीमून फेज भी आया और दूसरा रियलिटी फेज भी आया. अब नाउ दिस द फेज विद अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फेज. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इट कि नाउ यू कैन गिव द स्पेस, हाउ यू कैन गो हेड. आप कैसे अपने आप को हेल्दी कैसे बना सकते हो, कैसे अपने आप को आप सब, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल सर्वाइव देन यू विल बी एबल टू लाइक यू कैन लिव विद योर चाइल्ड. आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है, लाइक ये पेरेंटिंग है फ्रॉम द वूम, you are going to nurture your child, you are going to give like a values in your child, you are going to emotional strong feeling to your child. वो आप अपने बच्चे को कैसे आप दे सकते हो. तो it is important first of all to prioritize you as a you are important. So first of all उसके अंदर जो अपना self esteem था, it was going down. तो that was the number one जो मैंने उसको बताया. First of all that you love yourself, आप अपने आप को प्यार करो. एंड when you are going to love yourself, whether other person is going to love yourself or love you or not is none of your concern. हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है. जब अपने आप से प्यार करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को एम्ब्रेस करना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर, तो चैलेंजेस, दीज आर द चैलेंजेस, और ये आज है कल नहीं रहने वाले हैं. दिस इज द माइंडसेट. इफ यू आर गोइंग टू डेवलप दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि ये आज है लेकिन कल नहीं रहेगा, फिर उसमें क्वेश्चन उठता है कैसे नहीं रहेगा, जब आज ऐसा है तो कल भी ऐसा रहने वाला है, अनसर्टेनिटी है, वो कैसे बदल सकता है. तो आई गेव द अनदर थिंग कि कहते हैं ना, बॉडी माइंड एंड सोल, वी हैव अ 3 कनेक्शंस विद अ पार्टनर. हमारा फिजिकल लेवल पे कनेक्शन होता है, माइंड टू माइंड लेवल पे कनेक्शन होता है, और सोल टू सोल लेवल पे कनेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं सोलमेट.
और फिजिकल इंटीमेसी जैसे टच, कहते हैं फिजिकल टच का इस इम्पोर्टेंट रोल होता है, इमोशनल कनेक्शंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उस रोल में मैंने उसको ये बोला कि ये जो दूसरा जो ये जो EFT का भी काफी इस पे रोल रखा, क्योंकि डिस्ट्रेस जो फील कर रही थी, शी वॉज फीलिंग सो डिस्ट्रेसिंग कि मैं आई एम नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, मैं चैन से रह नहीं पाती हूँ, मुझे एक वाइड फीलिंग होती है, एम्प्टीनेस फील होता है, मुझे फील होता है कि मैं मतलब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। तो वो जो फीलिंग है, तो उसके लिए देन जो एक EFT टेक्निक है वो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि EFT लाइक अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वेयर like this technique is going to release your physical pain as well as emotional pain too. तो उसमें आप उसमें क्या होता है EFT टेक्निक में, जो आपका कहते हैं ना, देयर द सम साइकोलॉजिकल एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, दिस इज द काइंड ऑफ अ टेक्निक और विच केम फ्रॉम द चाइनीज, चाइना का ये टेक्निक है जो हमारे भारत में आया और उसको हम यूज करते हैं। तो कहते हैं कि जो एक्यूप्रेशर है वो हमारे पेन को वैसे भी रिलीज करता है, बॉडली पेन को रिलीज करता है। तो इसी तरीके से जो ये EFT टेक्निक है, इमोशनल प्रेशर को, इमोशनल पेन को भी रिलीज करता है। तो उसके तरीके बताए कि दे आर द सम मिडल पॉइंट इन आवर बॉडी, हम उसको उस बेसिक पॉइंट्स में जा करके प्रेस करते हैं और जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को थिंक करते हैं। तो थोड़ा सा मैं लास्ट प्रीवियस जो हमारा वेबिनार था उसे थोड़ा सा हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। उसमें मैंने EFT में थोड़ा टैपिंग करना बताया था, इसमें जस्ट आपको रखना है, लाइक देयर आर सम पॉइंट्स, तो 7 पॉइंट्स है, तो 7 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट्स को भी आप टच कर सकते हैं। दिस सिंपल लाइक one technique is like you are keeping your finger over here. So like you are keeping your finger here and you are thinking like what you are thinking the problem, and you have a finger here. You can put one single finger, you can put 2 fingers here, or you can put 3 fingers here, or maybe 4 fingers here, and thinking about it. And then you are putting over here, above the eyes, then the below eyes, and then the upper lip, then the chin, thinking and putting together, and then the collarbone, and then the underarms. And after underarms, then you can put on the like a index finger on the nail. Then you can put on the like a thumb. अब thumb के ऊपर nail पे रख करके, and the problem you are, and what problem you are having, you just put it, and then you can put over here, and then the middle finger you can just press your finger, press your nail with the another finger, फिर ऐसे करके ऐसे problems को, then ये, and then the side by side, then you're pressing it. और प्रॉब्लम्स को आप सोच रहे हैं और आप ये प्रेस कर रहे हैं, और इसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स और 7 टाइम्स इफ यू आर डूइंग इट, आप इसको कर रहे हैं तो यू विल फील मच बेटर। तो इस तरह से उसको एक्सरसाइजेस करना बताया, डिस्ट्रेस को दूर करना बताया, गाइडेड मेडिटेशन, मेडिटेशन में एनर्जी का बड़ा रोल बताया कि हाउ द पॉजिटिव एनर्जी वर्क। सो पॉजिटिव एनर्जी में लाइक आपकी पॉजिटिव थिंकिंग कैसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, और नेगेटिव थिंकिंग क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी कैसे एनहेंस करती है, और जो पॉजिटिविटी आने वाली है वो भी उसको दूर करती है। तो उसको एक तरह से मेडिटेशन करना और साथ में पॉजिटिविटी को स्प्रेड आउट करना कि हमारी गुड विशेस है, दिस सोल इज सेंडिंग द पॉजिटिविटी टू दैट सोल, जो इज माई क्लोज पार्टनर, जो मेरा एक पार्टनर है, जो मेरा एक हस्बैंड है, जो मेरी वाइफ है, मैं उसको भेज रही हूँ या मैं भेज रहा हूँ और वो मेरे करीब आता जा रहा है। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहेंगे कि जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा वैसा अनदर पर्सन इज गोइंग टू रिसीव, और उसकी नेगेटिविटी कट होती जाती है, और नेगेटिविटी जब कट होती है तो द पर्सन कभी ना कभी, आज नहीं कल नहीं, बट कभी ना कभी इज गोइंग टू like a transform his own thinking pattern, or is going to transform from the past pattern of their behavior, और वो change उसमें दिखाई देता है। तो अभी मैंने उसको बोला कि 20 days to 40 days if you do such a kind of a ritual, like जिसको हम good wishes कहते हैं, and you do it, and of course you are going to get result, तो kind of charging your soul and then charging to another soul. So this is what like a gave this taught her.
तो गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, गिविंग स्पेस, ये भी मैंने उसको बोला कि इफ ही वांट्स स्पेस, आप उसको स्पेस दे दो। डोंट वांट टू टॉक, अब उसको पहले तो बिल्कुल वो मैसेज करती जाती थी, इतना मतलब इतना इम्पल्सिव हो जाती थी, इतना लाइक रिपल्सिव हो जाती थी, रिग्रेस्ड हो जाती थी कि वो जब तक वो मैसेज नहीं भेजती थी तब तक कि उसको चैन नहीं पड़ता था। तो आई सेड कि मैसेज भेजने का क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। शी सेड कि मैसेज पा करके तो वो और नाराज होता है और दूर भागता है। So what is the use of sending the message? But I cannot live without without talking, without communicating or without sending the message. मैं क्या करूँ? So धीरे धीरे वो सारी चीजें कराते कराते और फिर उसको जैसे मैंने गाइडेड बताया, रिलैक्सेशन टेक्निक बताया, EFT बताया, कैथारसिस बताया, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक एनर्जी एनहेंस होने लग गई और उसको स्पेस देने का अपने अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होने लग गई कि ठीक है, नहीं बोलता है, नहीं बोले, मैं मैसेज भी नहीं भेजूंगी। तो जैसे जैसे उसने देखा मैसेज भेजना बंद कर दिया, तो मैसेज करना कम कर दिया, तो वो उसको फिर वो आता है वापस, ही कम्स बैक कि क्या हो गया अचानक, मतलब क्यों अभी तो बात भी नहीं कर रही है और मैसेज भी भेजना बंद कर दिया। तो वो एक थोड़ा सा उसके अंदर इन आता इंटेंट आता है कि ही कम्स बैक कि व्हाट हैपेंड। तो भले ही वो मैकेनिकल वे में ही वो ही कम्स बैक, लेकिन आता है। सो दिस इज द चेंज लाइक शी इज गेटिंग इट। और फिर स्किल्स मैनेजमेंट में लाइक हाउ एम्पैथी यू कैन लाइक डेवलप, how you can communicate rather than like nagging or like a criticizing or getting angry or getting like a